a story that's coming from Bihar. I will get in Mr. Azad, who happens to be from Bihar, on the story, because we saw visuals today of police lathi charge happening at teachers and aspirants for the STET or the state, in fact, technical eligibility tests exams. There was a protest that was happening right outside the Bihar Education Minister's house. These aspirants have been alleging that their names have been missing from the list, that the vacancies are not getting filled up in a transparent way, and they broke barricades. There was also a heavy lathi charge that was unleashed upon them. To try and understand what is really happening in Bihar on the subject, I'm also joined by Anupam, who happens to be the president of Yuva Halla Bol, a youth campaign across the country on issues of employment and other significance. Before I come to you, Anupam, Mr. Azad, let me come back to you. You are from the state of Bihar. Why has this become such a festering issue? Contract teachers or state teacher examinations, we see these lathi charge images emerge almost every few months. The most serious thing about Bihar is jobs. And in fact, every government which comes into power, it comes on the strength of assuring people that it will give jobs to the people. Employment was a huge issue even before the elections. Now, of course, Anupam has been dealing with this truly as a real, activist out in the field. But, there are these teachers. The teachers' problem is really very, very serious. And the teachers' problem is not only now, it has been going on from before. Anupam just told me that there are teachers who have cleared the exam of 2011. They are still hanging in balance. Now there is another one of 2019 STET, which is the one in question, and why there is a lathi charge. Because in the merit list, the names of 29,500 people were issued in 2019. And now some of those names have been changed. So Anupam has raised 7 right questions. How have the names been changed? So this is the kind of thing which keeps happening in Bihar, which is a very, very sad thing. I think today these students had gone, these teachers had gone for a gherao of the education minister. And unfortunately, because of law and order issues, they were lathi charged. So, unless Bihar gets a grip on its administration, in the sense that, whatever is done should be done in a transparent manner. How can the list of 2019 and 2021 change? That is the biggest issue, and they have to come up front and answer the people why it happened. Okay, Anupam is there with me. Anupam, if you can hear me, पहले तो ये बताइए कि ये मुद्दा जो है, कितनी वैकेंसीज की हम बात कर रहे हैं जब हम इन पोस्ट्स की बात कर रहे हैं, और आपने कुछ अहम सवाल उठाए हैं बिहार की सरकार के लिए. ब्रेक डाउन दोस क्वेश्चंस फॉर आवर व्यूअर्स, अनुपम. यस स्मिता, पहले तो जो लार्जर पिक्चर है इस पूरे टीचर रिक्रूटमेंट इशू का, मैं पहले उस पर आता हूँ और फिर जो स्पेसिफिक स्टोरी है आज की उसको लेकर भी सारे जो क्वेश्चन है उसको भी मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ. जो सरकार के अपने आंकड़ों के हिसाब से 24 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, उसमें से 11 लाख शिक्षकों के पद है देश में, और बिहार उसमें टॉप करता है. बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था के बारे में सब जानते हैं, देश दुनिया में कहानियां सुनाई जाती हैं. ये जो सरकार के अपने आंकड़े हैं कि 3,15,778 सैंक्शनड लेकिन वेकेंट पोस्ट सिर्फ बिहार में. किसी भी सरकार के लिए ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी. वॉर फुटिंग पे रिक्रूटमेंट करना चाहिए था, टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जरिए. लेकिन अब हम स्पेसिफिक बिहार स्टोरी पे अगर हम आए तो 3 तरह के समूह हैं जो आज भी जिनको लगता है कि उनके साथ पूरा न्याय नहीं हुआ, जस्टिस नहीं हुआ. एक तो प्राइमरी टीचर्स का 94,000 का, जिसको लेकर हम लोगों ने काफी कैंपेन किया, सरकार को प्रेशराइज करने की कोशिश की, तो वो अब उनका शेड्यूल जारी हुआ है काउंसलिंग का. एक दूसरा समूह है जो 2011 में जिन्होंने एस्टेट क्वालिफाई किया था, उसमें भी हजारों हैं जो अभी तक बेरोजगार बैठे हुए हैं. आप समझिए 10 साल बीत गए, और सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार ने MHRD ने एक ऑर्डर इशू किया कि जो टीचर एलिजिबिलिटी है उसको हम लाइफ टाइम कर दे रहे हैं, तो कई सारे जो बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हैं वो इसी को उपलब्धि बनाकर पेश कर रहे हैं कि अब तो आपकी जो एलिजिबिलिटी थी टीचर बनने की वो तो लाइफ टाइम हो गई है, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है. सो ये वैसा है कि भाई हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी का सिम कार्ड दे रहे हैं लेकिन उसमें इनकमिंग आउटगोइंग नहीं दे रहे हैं, रोजगार ही नहीं दे रहे हैं, नियुक्ति ही नहीं दे रहे हैं, तो लाइफ टाइम वैलिडिटी का क्या करें. और जो तीसरा
और जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, नहीं तो इनको जब कहते हैं अनुपम, एक क्लैरिफिकेशन, जब ये कहते हैं कि आपको हमने जो है लाइफ टाइम गारंटी दे दी, मेरी आवाज आ रही है अनुपम, जब ये कहते हैं कि भाई आपको लाइफ टाइम एलिजिबिलिटी दे रहे हैं, इसमें कोई इनको कोई फीस तो नहीं आ रहा है, सरकार की तरफ से कोई पैसा तो नहीं आ रहा है, और वैकेंसीज की भर्तियों में भी धांधली की बात की जा रही है। और अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश में भी स्मिता, चीफ मिनिस्टर के हैंडल से ये ट्वीट किया जाता है कि हमने शिक्षक अभ्यर्थियों को जीवन पर्यंत वैलिडिटी दे दी, लाइफ टाइम वैलिडिटी दे दी उनकी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स की। ये हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो भाई उस सर्टिफिकेट का कोई करे क्या? अगर उनको अनएम्प्लॉयड घर में ही बैठे रहना है, अगर उन टीचर्स को पढ़ाना नहीं है, उनको जॉब नहीं चाहिए, और ऐसे सिनेरियो में जब देश भर में सबसे ज्यादा अगर पोस्ट्स खाली हैं, सैंक्शनड पोस्ट्स, तो वो टीचर्स के हैं। बिहार नंबर 1 पे है, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे है, झारखंड नंबर 3 पे है, एमपी नंबर 4 पे है, और ये लाखों की संख्या में टीचर्स के पोस्ट वेकेंट है। अब स्मिता, मैं उस इशू पे आता हूँ जिसको लेकर आज इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ था और जिसके बाद लाठीचार्ज हुआ। और अनफॉर्चुनेटली देखिए, हमारी कई बार आप तो अक्सर अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर कंसर्न भी रहते हैं, उसको लेकर डिस्कशन और क्वेश्चनिंग भी करते रहते हैं, लेकिन जनरली जो हमारी सो कॉल्ड मीडिया है उनको तो दिखता भी तब है जिस दिन लाठीचार्ज होता है। सच्चाई ये है कि इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट इतना सीरियस क्राइसिस है, हर वक्त हर स्टेट में सड़कों पे अनएम्प्लॉयड यूथ है, अपने ज्वाइनिंग के लिए, अपने प्रोसेसेस कंप्लीट करने के लिए, भर्ती निकालने के लिए। अब जो एस्टेट 2019 की बात है वो ये है कि एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नोटिफाई हुआ साल 2019 में। 2019 में जो नोटिफाई हुआ उसका 12 मार्च को 2021 में लिस्ट जारी किया सरकार ने 24,599 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का। अब ये जो नोटिफिकेशन था 2019 एस्टेट, ये 37,000 पोस्ट के लिए था। इस पर ध्यान दीजिए। यहीं पे जो प्राइमा फेसी मुझे स्कैम दिखता है, जिसको लेकर पटना में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था 3 दिन पहले, वो ये है कि 37,000 वैकेंसीज है नोटिफाई हुए सरकार की तरफ से। जब लिस्ट जारी हुई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की तो वो 24,599 है, और जब मेरिट लिस्ट तैयार हुआ 21 जून को, अभी पिछले सप्ताह, तो सेम फिगर 24,599, एक कम है टेक्निकल रीजन से, 24,598 सेम फिगर सरकार मेरिट लिस्ट में जारी करती है। लेकिन हजारों की संख्या में ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई तो हुए थे 12 मार्च को, लेकिन मेरिट लिस्ट से गायब हो गए। तो जो मैंने सवाल पूछा था बिहार सरकार, Okay, you've made your point, Anupam. I'm afraid Anupam, I have run out of time. This is an issue I will be taking up again and discussing in details on the show in the days ahead. Mr. Azad, a quick comment from you. If you have sanctioned posts that you are announced, but you are still not filling it, is it because the state treasuries have run out of money, or is it simply because the political system is not getting its act right? That is one reason why many of the vacancies are not filled, because the treasury is absolutely strained. But in Bihar, as far as the primary teachers are concerned, that process has already started. But the problem about State 19, as Anupam has said, is serious. If this has happened, and if the names have disappeared, then the first government will have to come out. And I just hope that the matter does not reach the court again, because this will again go back 5 years. Therefore, it is necessary for the government to resolve this issue. Absolutely, and we will continue to raise these issues on People's Editor. We will also try and bring in a report card on employment, on the unemployment issues of some of the major states in the days to come. For now, Yashovardhan Azad as well as Anupam, thank you for joining us here on the show. That's all that we have time for here.